बच्चों, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. आज का टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. ये जो टॉपिक है बच्चे, इसके बाद हमारा जो पूरा चैप्टर है वो एक्चुअली खत्म हो जाएगा. हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कर रहे हैं एंड वी विल बी एबल टू वाइंड अप द एंटायर चैप्टर विद दिस टॉपिक ऑफ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, बोझो और आदाब. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के सेशन में. फिर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी अपकमिंग वीडियोस. नाउ लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. हाय बच्चों पारी, मेरा नाम है अंकना और मैं हूं आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब, कमिंग विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जहां मैंने बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई पढ़ाया है. आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ humanities and hence I specialize in English and social science. Now moving on, we'll start with a quick recap of what we have done in the previous session. तो हमने पढ़ा एज ऑफ रिवोल्यूशन जो 1830 से 1848 में होता है, जहां पे बेसिकली हम ये देखते हैं कि फ्रांस से ही कहानी शुरू होती है. जुलाई रेवोल्यूशन से बर्बन किंग्स को ओवरथ्रो कर दिया जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज ब्रॉट इन. That is, and Louis Philippe takes over. However, by 1848, what happens? 1848 तक फ्रांस में वापस रिवोल्यूशन होता है because the population was ever growing, hunger की problem थी, ये सारे issues चल रहे थे, and because of this it eventually leads to a place where we have to understand that the end result is another revolution where Louis Philippe understands that he will have to abdicate and run away and flee, because if he doesn't then कहीं Louis 16 जैसी हालत उनकी भी हो जाती. Now while this was going on, हमने रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा है. हमने देखा है कि ग्रीस में जो रिवोल्यूशन हो रही थी उसकी प्रॉब्लम हमने देखी है. Right, all of those things we have seen. So what we have to understand over here is that similar thing was impacting in the entire Europe. पूरे ही यूरोप में सेम वेव ही चल रही थी, सेम तरह की चीजें ही चल रही थी. ठीक है guys, we'll resume in just a quick second. Just give me a quick moment and I'll be back. Okay guys, sorry. So whatever was happening in France was kind of affecting the entire Europe, and that is why Duke Metternich had said, for that matter, that whenever France sneezes, the entire Europe catches cold. Why is the Europe catching cold? The Europe is catching cold for this very reason, right? So now with that, जर्मनी में भी डिमांड शुरू हो जाती है. 1848 में उन्होंने भी एक पार्लियामेंट फॉर्म करा होता है. फ्रैंकफर्ट वाज द प्लेस वेयर दे डिड दैट, राइट? एंड दे गो टू द किंग विद द आस्क ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, व्हिच ऑब्वियसली द किंग रिजेक्ट्स. एवरीवन हैड स्टार्टेड रिजेक्टिंग इट बाय देन. ऑस्ट्रिया, हैब्सबर्ग और ये सारी जगह पे हम बेसिकली देखते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर, फॉर एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया, सॉरी ऑस्ट्रिया एंड हंगरी एंड ऑल ऑफ दीज प्लेसेस. व्हाट वी सी इज that the people over there, the rulers, okay, they had realized that conservatism was not going to work out for them the best. They had to figure a way out to kind of curb this, because the more they would have been conservative, the more people would have wanted to rebel against, and the more they would have desired to ask to go ahead with a revolution, have a revolution, right? So what they started doing now was using the people and the revolutionaries as their subjects, where they give them some liberty which will actually be useful for them in having their rule more
how do you say, supported by the revolutionaries and have the strength for it, but rather what they were trying to do is लोगों को फुसला रहे थे कि अच्छा ठीक है आप ये चीज ले लो, आपको ये सेंसरशिप हटानी है, थोड़ा सा जैसे उनका काम बन जाए, लेकिन उनकी कंजर्वेटिज्म या उनका रूल जो है वो बने रहे, वो इंटैक्ट रहे. So finally, we see two big revolutions happening in Germany and Italy, where they were basically kind of scattered before. They were a modern state, not a nation state, but there goes on the process of creating a nation state for these two places. So we see Otto von Bismarck will take the leadership role with the support of the Prussian army and bureaucracy, and he fights over a series of wars, 3 wars against Denmark, Austria, and France over a period of 7 years, and finally establishes Germany as a united place, where Kaiser William I becomes the new head of the German Empire. सिमिलर चीज हमें इटली में देखने को मिलती है. इटली का रिवोल्यूशन इनफैक्ट जो आपका कंबाइन करने का था, यूनिफिकेशन का था, वो पहले ही होता है. हमारी बुक में ऑर्डर अलग दिया गया होगा, लेकिन डेट जब आप देखोगे तो आप फिगर आउट कर लोगे कि इटली का पहले होता है. गिउसेppe माज़नी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा. ही वाज वन ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, इटालियन रिवोल्यूशनरीज, एंड ही हैड स्टार्टेड दिस होल थिंग फॉर Italy's unification. But then what happens now is that he fails, and then the whole responsibility falls upon Victor Emmanuel II, who was the Italian prince, and that was the only Italian prince house. So he does it with the help of his diplomat called Cavour, and he unifies Italy in 1861, finally, by fighting again, not fighting, but taking care of different places, and it goes on for a while. Formation of Britain हमने देखा was a strange case. Why we are calling it a strange case is because it's very different from that of Germany and Italy. Germany and Italy में there was series of battles and wars and stuff like that, but ब्रिटेन की कहानी बहुत अनोखी है. उन्होंने तो 1664 में ही अपने मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया था पार्लियामेंट के साथ, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की को. तो उनका सिस्टम जो जिसके लिए फ्रांस लड़ रहा है और जर्मनी लड़ रहा है और ये लड़ रहा है वो लड़ रहा है, वो उन्होंने 1664 में सॉर्ट कर लिया था अपने लिए. अब उन्होंने क्या शुरू किया, स्कॉटलैंड से पहले दोस्ती की का हाथ बढ़ाकर उनकी तरफ उनको पटाने की कोशिश की है कि भैया देखो साथ मिल जाते हैं, 50-50 पार्लियामेंट एंड एवरीथिंग इन पावर एंड ऑल शेयरिंग, but will be stronger. And that's how in 1707 with the Act of Union they form United Kingdom of Great Britain. But Scottish people को they dominated. They did not let them have any identity. और वैसे ही फिर बड़े धोखे से आयरलैंड को भी एक्वायर कर लेते है ना. आपके नॉर्मली क्या होता है कि मेजॉरिटी को लोग सपोर्ट करते हैं कि मेजॉरिटी रहेगी तो हमारा साथ रहेगा, हमारे लिए सही रहेगा. इन्होंने क्या किया, माइनॉरिटी को सपोर्ट किया, क्योंकि माइनॉरिटी तो हर जगह अपने आप को दबा हुआ पाती है. आप जब माइनॉरिटी को ही आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बाकी पावर आपके पास है. आपने माइनॉरिटी को भड़का दिया, आपने माइनॉरिटी को बोल दिया कि आपके फेवर में ही है, तो माइनॉरिटी तो आपको सपोर्ट करेगी अपने पावर के लालच में. तो इन्होंने ये कर दिया था. टॉम वुल्फ वगैरह जो भी और लोग आते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, उनके प्रोटेस्ट को सप्रेस कर देते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ. अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हैं. वी आर गोइंग टू बेसिकली summarize the chapter today. ठीक है. तो Imbibe Simple is the batch is the subscription that we have brought for you. हमने finally हमारे 10th का बैच जो है वो 12th of April को लॉन्च कर दिया है, and you can join it whenever you want to. The best part is आप जब भी ज्वाइन करो. अब ये 12th April को लॉन्च हुआ है, एक रीलॉन्च हमारा ड्यू है, हम नेक्स्ट मंथ फिर से करेंगे. बट बिफोर दैट इफ यू जस्ट वांट टू जॉइन दिस बैच इटसेल्फ, द बेस्ट पार्ट इज इट डजंट मैटर व्हेन यू वांट टू. आप जब भी इसको ज्वाइन करोगे आपको फर्स्ट 7 days का फ्री ट्रायल मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. And then you have your we were planning on finishing entire syllabus with you, giving you enough mock tests, giving you enough quizzes and practice and detailed analysis, and around 800 hours of live sessions where we'll be doing midterm revisions, final revisions, entire syllabus completion. विशाल सर मैथ्स पढ़ाएंगे, मैं सोशल साइंस पढ़ाऊंगी, अक्षय सर साइंस पढ़ाने वाले हैं, और आपको इसी के साथ साथ बहुत पहले से ही प्री क्रिएटेड पूरे सिलेबस से मैप बहुत प्यारी 3D लर्निंग वीडियोस पहले से अवेलेबल है, साथ में लाइव क्लासेस हो रही हैं. कभी भी डाउट आ
जाए तो 24/7 आपके पास जो है डाउट रिजोल्यूशन के लिए एआई का ऐप है, लाइव क्लासेस में आपके टीचर्स भी हैं, प्लस वी आर ऑल्सो scheduling after every few sessions a dedicated session to resolve your doubts and also have multiple quizzes. So that's one another thing that will be of great advantage to you. Plus बच्चे, मैं बार बार यही कहती हूँ कि 10th में जब किताबें सेम है, टीचर्स सेम है, स्कूल सेम है, कई बार कोचिंग क्लासेस भी सेम है, सब कुछ सेम है, उम्र सेम है, तो फिर क्यों कुछ बच्चों के मार्क्स बाकी बच्चों से अलग होते हैं, ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? इट्स ऑल अबाउट द मेथड दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर इन ऑर्डर टू प्रिपेयर, राइट, अपने प्रिपेयर फॉर योर गोल। तो आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है उससे बहुत ज्यादा डिटरमाइन होगा आपका रिजल्ट। और इसमें 10th में द मोर यू वर्क ऑन आंसर राइटिंग, द मोर यू वर्क ऑन आर्टिकुलेशन ऑफ योर आंसर, द बेटर योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी। सो दैट इज समथिंग दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट यू गोइंग टू नीड लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे इज द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1 लाख सवाल जो है हमारे पास आपके लिए हमारे एप्लीकेशन पे है। PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, हर तरह के सवाल, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, पूरे सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट। एंड आई थिंक एक टाइम के बाद आपके जो अपने क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एनसीईआरटी में तो कितने ही हैं, बड़े थोड़े से। तो बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान जरूर रखो कि आपके पास इनफ क्वेश्चंस हो, एंड यू विल बी इन्वेस्टिंग एनी विच वेज इन बाइंग बुक्स एंड दिस एंड दैट। Might as well just come here, use the questions. You will also have e-books. 80 से ज्यादा e-books हैं आपके पास, आपको किताबों में भी ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी रखो, एनसीईआरटी इज योर बाइबल। जो एक्स्ट्रा और किताबें चाहिए वो यहाँ से आपकी फुलफिल हो जाएंगी। खैर, तो ये थोड़ी सी बात इम्बाइब सिंपल की हो गई, जहाँ पे आपको लर्निंग वीडियोस मिल रहे हैं, डाउट रेजोल्यूशन मिल रहा है, हमारी लाइव क्लासेस मिल रही हैं, आपको कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मिलेगी आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। आप छोटे छोटे गोल्स सेट कर सकते हो कि मुझे पहले ये टॉपिक में इंप्रूव करना है, फिर इस टॉपिक में इंप्रूव करना है। दैट ऑल्सो यू कैन हैव लाइक अ पर्सनलाइज्ड जर्नी, एंड देन यू गेट टू डू इट विद इंटरैक्टिव कूबोज, एंड ऑफ कोर्स द ग्रेट प्रैक्टिस एंड टेस्ट्स दैट वी हैव फॉर यू विद अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन। अब ये अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अनलिमिटेड एग्जाम्स का सिंगल सब्सक्रिप्शन। ये सिंगल सब्सक्रिप्शन से हमारा मतलब ये है बच्चों कि आप ये देख लो, पहले प्राइस पॉइंट देख लेते हैं। आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जब लेते हो तो इट कॉस्ट यू 699 पर मंथ। आप जब 3 महीने के लिए लोगे तो 599 पर मंथ का कॉस्ट आएगा, और जब पूरे 1 साल के लिए लेते हो 499 पर मंथ। Just by looking at the price, a lot of students have asked, ma'am, is this just for one subject? It's not just for one subject. It's not just for one class. It's for everything. यानी कि आपके साथ अगर आपके भाई बहन भी हैं, आप इतने ही पैसों में सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन क्लास 10th, तो मैंने 10th का सब्सक्रिप्शन लिया, पर मैंने सिर्फ 10th का सब्सक्रिप्शन और ये लिया है, मैंने प्लान 1 साल का। अभी 499 जो मैं पर मंथ पे कर रही हूँ इज नॉट ओनली गोइंग टू गिव मी अवेलेबिलिटी टू क्लास 10th मटीरियल्स एंड क्लासेस, बट अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन 9th में है, कोई बड़ा भाई बहन 12th में है, कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है, जो जिसकी तैयारी कर रहा है वो उस एग्जाम के सेशंस देख सकता है, अवेल कर सकता है एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से। और प्लस आपको इम्बाइब के सारे ऐप पे, मतलब वीएलई हो जाए, लेंस हो जाए, ब्रेन एप्स हो जाए, जो भी, उन सब का आपको मिलता है एक्सेस। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। एंड प्लस वी ऑल्सो शेयर सम एक्टिविटीज ऑफ 5-7 मिनट्स इंटरेक्शन बिफोर एंड आफ्टर द सेशन। और हमने ये नोटिस किया है कि व्हेन स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग बोथ द थिंग्स एंड अटेंडिंग द सेशन, इट ब्रिंग्स अ टोटल ओवरऑल स्कोर इंप्रूवमेंट ऑफ 12.62%. Like how awesome is that, isn't it? तो ये चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसको विजन ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, रिवोल्यूशन इन यूरोप इन 1830-1848, मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म में डिवाइड किया जा सकता है। वी फिनिश दी अदर टॉपिक्स। आज हम नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म कर रहे हैं, जिसके अंदर विजुअलाइजिंग द नेशन थ्रू एलिगरीज, राइज ऑफ imperialism by European powers, independence of Balkans from Ottoman Empire, Balkans as a region of the First World War, and anti-imperial movements across the world. ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे, ठीक है? So you can bring your books to life. It's going to be very simple. Imbibe lens है, Imbibe lens से scan करिए and you can see how it comes to life just like this. It's just beautiful, you guys. And I very strongly feel that you should experiment and, you know, try Imbibe lens if you haven't. 7 days के free trial में इन सब का भी आपको free trial मिलेगा. So just make sure to do it. So let's start with these 3 questions.
from the previous session so that we are quickly able to have a quick revision. Which key figures played crucial role in the unification of Germany and Italy in the mid 19th century? So guys, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली में वो कौन से दो लोग थे जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था? So we have, see, we have been asked about Germany and we have been asked about Italy. So we know Otto von Bismarck and we also have Victor Emmanuel II. These were the people who had great contributions to make. Okay? Then we have the next question. Which factor motivated the ruling elites of the Sardinia Piedmont to support the unification of Italy in the mid 19th century? Ideals of democracy and socialism, economic development and political dominance, fear of foreign invasion, religious unity. Okay, people. So the factor that motivated was basically people wanted. देखो normally कहीं पे भी आप देखोगे unification हो रही है because people have been seeking for development and people have been seeking for dominance. That's why they'll do it. Okay. Last question before we move on forward. How did the formation of the United Kingdom of Great Britain impact Scotland and Ireland? Led to the dominance of Scottish culture, resulted in the suppression of Scottish culture and Irish identities, promoted religious freedom, or strengthened the power of Scottish Parliament. So we know that there was definitely no domination for these guys. They were the ones who got dominated by the Britishers. We just discussed that, right? So the word king generates certain images in our minds, like the crown, the throne, the royal purple robe of the face of the king himself. लेकिन नेशन विजुअलाइज करना हो तो हम क्या करेंगे? कैसे एक नेशन को, एक कंट्री को एक पर्सन के फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में हम डिपिक्ट कर सकते हैं और क्यों करना है? सो लेट्स अंडरस्टैंड.
तो बच्चे सबसे पहले विजुअलाइजिंग द नेशन थ्रू एलिगरीज। एलिगरीज क्या होते हैं भाई? अब ये बड़ा सवाल उठ गया है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय एलिगरीज? क्योंकि ये अगर आप समझ गए तो आपका बहुत बड़ा यहाँ पे जो डाउट है ऑफ एलिगरीज एंड लाइक कंफ्यूजन वो सॉल्व हो जाएगा। तो होता क्या है कि हम कई बार अपने कंट्री को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पर्सोनिफाई करके। पर्सोनिफाई करना मतलब बच्चे ये होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी पर्सन की तरह, ह्यूमन की तरह प्रेजेंट करना, और आप उसको वैसे प्रेजेंट करते हो जैसे आपका आइडिया होता है उस नॉन लिविंग थिंग का, आप उसको जैसे इमेजिन कर रहे हो। जैसे अगर आप एक कंट्री को एक सर्टेन तरीके से इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं कि इंडिया वुड बी वेरी गिविंग इन नेचर, इट्स लाइक अ मदर, तो एक फीमेल की तरह प्रेजेंट करेंगे और वैसे कुछ हम उसमें सिंबल्स डालेंगे जिससे गिविंग वाली वाइब आए। सो जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कॉन्स्ट्रक्ट नहीं की जा सकती, उसको किसी इंसान की तरह, किसी चीज की तरह प्रेजेंट करते हो, एक कॉन्क्रीट फॉर्मेशन देते हो, तो उसको एलिगरी कहते हैं। उसका एक लिटरल मीनिंग भी हो सकता है, उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो नेशनलिज्म की वेव तो चल रही है, बट नेशनलिज्म बच्चे एक आइडिया है ना, एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो टाइम के साथ हो सकता है फेज आउट कर जाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर फॉर पीपल टू हैव साइंस एंड सिंबल्स टू एसोसिएट विद, कि वो चीजें उनको दिखती रहे और उनके अंदर जो वो आग है वो जलती रहे, है ना, कि पीपल कीप गेटिंग मोटिवेटेड। सी एवरी टाइम यू लिसन टू अ पेट्रियोटिक सॉन्ग, even if you're not constantly thinking about your country and doing something good for your country, whenever you listen to that song, that feeling automatically emerges कि अरे मुझे अपने देश के लिए तो कुछ अच्छा करना है, मुझे अपने country के लिए करना है। Why? Because it's something that motivates you, that brings in that energy. And the same thing had to be done for other people who were being a part of this movement as a revolutionary as well. उनके लिए भी ये सारी motivation बहुत required थी। तो रूलर का पोर्ट्रेट बनाना या कुछ करना ये सब मुश्किल नहीं होता है, लेकिन नेशन को फेस कैसे देंगे? तो आर्टिस्ट जो थे ये 18वीं और 19वीं सदी के, 19th सेंचुरी के, 18th सेंचुरी के, they started figuring out that it was important to represent the country as a person for people to be able to relate with it, because जब हम feeling of oneness की बात करें तो आपको nation से भी relate करना है। ज्यादातर हम यही देखते हैं the nations have been portrayed as female figurines, ठीक है। अब ये फीमेल किस तरीके की होगी was dependent upon absolutely the features of the nation as people would describe. ये कोई भी real life में existing female नहीं थी, it was completely an imagination, an abstract thing that existed which people now started putting into a concrete form of a person and form of a person, ठीक है। और इसे ही हम allegory कहते हैं। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त आपको याद होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि लिबर्टी का आइडिया, जस्टिस का आइडिया, रिपब्लिक का आइडिया, उसके लिए हमने एलिगरी यूज की थी। फॉर दैट मैटर लॉ के लिए, है ना, जो लॉ था उसमें विंग्ड वुमेन वाज यूज्ड। तो ये सब क्या है, आप एक आइडिया को एक पर्सन के फॉर्म में सर्टेन सिंबल्स के साथ जो है सिग्निफाई करते हो, सिंबलाइज करते हो। तो वो अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग आइडियल्स जो हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स से वहां पे दर्शाए जाते हैं। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो लिबर्टी कैसे पता चल रहा है हमें? तो एक मशाल जली हुई है, शी इज होल्डिंग दिस बुक ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमंस। तो वो जब राइट्स ऑफ ह्यूमंस की बात कर रही है वो क्या है, वो सिंबल है कि ये लिबर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग एट्रीब्यूट्स डाले जाते हैं जिससे आपको अलग अलग सिंबलाइजेशन, अलग अलग मैसेजेस मिले। जैसे कि लिबर्टी जो है उसके लिए रेड कैप हो सकता है, ब्रोकन चेन हो सकता है, ठीक है। जस्टिस के लिए ब्लाइंड फोल्ड हो सकता है, वेयर द फीमेल वुड बी कैरिंग द वेइंग स्केल्स। हमने क्या देखा है, हमारे कोर्ट में लगी होती है ना ये फीमेल फिगरीन जिनके आग पे पट्टी बंधी होती है, वेइंग स्केल होता है, जो दिखा रही है कि जस्टिस जो है वो देखता नहीं है, वो बैलेंस बनाता है, वो एविडेंस और इन सारी चीजों के बेसिस पे बैलेंस बनाता है। इट्स नॉट बायस्ड टू व्हाट इट्स आईज लुक्स टुवर्ड्स, कि मुझे जो दिख रहा है मैं उसको फेवर करूं और बाकी को ना करूं। जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो मेरे लिए आपके वेइंग स्केल में बैलेंस क्रिएट कर रहा है, उसके हित में जो है आपकी जस्टिफिकेशन आ जाएगी, उसके हित में जो है रिजल्ट आ जाएगा। दैट्स द होल आइडिया। ओके
तो ऐसे ही हमने फीमेल फिगरीन्स एंड एलिगरीज भी बनाई जो उस सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी। तो नेशन वाज रिप्रेजेंटेड एज फीमेल फिगर्स। ये बेस नहीं थी किसी भी रियल वुमेन पे, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक टैंजिबल मेजरेबल कॉन्क्रीट फॉर्म दिया गया था और ये फीमेल फिगर्स जो है वो एलिगरी बन गई नेशन की, क्योंकि रॉयल फिगर्स बनाना तो वैसे भी आसान था, इतनी मुश्किल बात नहीं थी। और आप देख सकते हो हर जगह फीमेल ही ज्यादातर इस्तेमाल किए गए हैं। तो आर्टिस्ट ने यहाँ पे ये फिगर आउट किया कि दे हैड टू do something about all of these things that was there। तो जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि मैरियन है ना, मैरियन इज बेसिकली द नेम ऑफ द एलिगरी ऑफ फ्रांस विच वाज इंस्पायर्ड बाय लिबर्टी एंड रिपब्लिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेड कैप इंक्लूड किया लिबर्टी के लिए, ट्राई कलर इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रेंच स्टेट, ठीक है, एक कॉकेट दिया गया है। देन यू ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस में, अच्छा हाँ, स्टैचूज जो है वो हर जगह पब्लिक स्क्वायर्स में लगाए गए थे नेशनल सिंबल की तरह कि लोग उन्हें देखें, उससे इंस्पायर हों। अलग अलग इमेजेस हैं जैसे कॉइन्स पे, स्टैम्प्स पे, अलग अलग जगह पे लगाए गए। ये भी हम देखेंगे कि अलग अलग जगह पे एलिगरी जो है अलग अलग फॉर्म में, कहीं पे फाइटर की तरह, कहीं पे लॉस्ट अगर दिख रही है जर्मेनिया के साथ जैसे हम देखते हैं। तो जर्मेनिया जर्मन स्टेट की एलिगरी बन जाती है। जर्मेनिया क्राउन पहनती है ओक लीव्स का, और क्योंकि ओक जो है वो हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है, तो दैट शोज दैट हीरोइज्म है। वैसे ही एक जुलियस ह्यूबनर ने बनाई है 1850 में आपकी जर्मेनिया की एलिगरी फॉलन, बिकॉज हमने ये देखा कि जर्मेनिया वाज नॉट रेडी टू फाइट, राइट। देन जर्मनी हैज आल्सो शोन गार्डिंग द राइन। तो ऐसे अलग अलग हमारे पास एलिगरीज है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिगरी ऑफ फ्रांस? मैरियन। मैरियन का इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? रेड कैप, ट्राई कलर, क्राउन ऑफ ओक लीव्स या द कॉकेड? So guys, red cap, tricolor and cockade was there. Crown जो oak leaves की है ये जर्मेनिया का सिंबल है. It was with Germania, right? आप देखो इंपेरियलिज्म क्या होता है. इंपेरियलिज्म बेसिकली हम तब कहते हैं, इंपेरियलिज्म से हमारा मतलब होता है जब कोई एक बड़ा ताकतवर नेशन जो है वो जाकर के दूसरे छोटे नेशन पे कब्जा कर ले और उसे कंट्रोल करने लगे, उसकी सोवरेनिटी जो है छीन ले. ये इंपेरियलिज्म होता है. इंपेरियलिज्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद बहुत तेजी से स्प्रेड होते हुए दिखता है, स्पेशली विद द यूरोपियन कंट्रीज, कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, कंट्रीज लाइक फ्रांस, इवन जर्मनी फॉर दैट मैटर, पोर्तुगल, ठीक है, नेदरलैंड्स. ये सारे कंट्रीज में हम क्या देखते हैं, ये बड़े पावरफुल थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई थी उसकी वजह से. सो दे स्टार्ट स्प्रेडिंग अराउंड इन डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर नेशंस. और इस वक्त एक कॉम्पिटिशन चल रहा था. मैं बड़े से चीज को पहले ही शॉर्ट में आपको समझा दूं, यहाँ में क्या बताया जाएगा. कंपटीशन किस बात का चल रहा था? जितना कोई भी देश दूसरे देश पे कब्जा करेगा, उसके रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लेगा, उतना ज्यादा वो इकोनॉमी जनरेट कर पाएगा, उतना ज्यादा वो पावरफुल हो पाएगा. तो अब यहाँ पे लड़ाई चल रही है पावरफुल बनने की. तो हर एक बड़ा देश जितने ज्यादा हो सके छोटे देश को कवर करने की कोशिश कर रहा है. और ये लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में बहुत दिखेगा, यानी कि 1875 से 1900 के बीच में तो पीक पे दिखेगा, लेकिन शुरू उसके पहले ही हो चुका था. ठीक है, मतलब आप देखो 1757 में तो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, ऐसे कई जगह वो साल में थे. 18 बेसिकली आप देखो कि 19th सेंचुरी के मिड तक ये चीज, ये प्रैक्टिस बहुत प्रेवलेंट हो चुकी थी. ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अब यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में एक और चीज बढ़ जाएगी 19th सेंचुरी के, पीपल सेंटिमेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी.
यानी कि लोगों को अब आजादी भी चाहिए, डेमोक्रेसी भी चाहिए, सोवरेनिटी भी चाहिए, नेशन स्टेट भी चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी चाहिए और अपना देश आजाद भी चाहिए, कहीं से भी डोमिनेटेड नहीं चाहिए लोगों को। अब ये चीज वर्क नहीं करेगी। सो नेशनलिज्म जो है विल लूज समवॉट इट्स लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट इन द 19th सेंचुरी। अब वहां पे शिफ्ट आने लगेगा। इसके पहले लोगों को बहुत सिंपल सी चीज चाहिए थी कि अपना नेशन चाहिए था, अपने लोग चाहिए थे। अब ये बहुत नैरो हो जाएगा, एक लालच के साथ, एक लिमिटेड गोल के साथ, और नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो है वो अब इनटॉलरेंट हो जाएंगे ऑफ ईच अदर। नाउ व्हाई विल दिस हैपन? बच्चे इस पीरियड में आप ये देखोगे कि लोग जो है वो वॉर पे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उनका हो गया है। अब उनको हर कीमत पे, किसी भी कीमत पे आजादी चाहिए, और आजादी अपने लिए चाहिए। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे नेबरिंग कंट्री को भी आजादी मिल जाए, उनका भी अच्छा हो जाए। अगर उनके कॉस्ट पे मुझे आजादी मिल रही है तो वो उनको सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थे। ये एस्पिरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और इसी वक्त जो बड़े यूरोपियन पावर्स हैं वो इस मौके को बहुत अच्छा अपने लिए समझते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना है, इन छोटे देशों को मैनिपुलेट करना है। दे जस्ट हैव टू मेक देम बिलीव दैट दे आर देयर टू सपोर्ट देम, है ना। एंड इफ दे नीड टू गो एट अ वॉर, दे विल हेल्प देम इन द वॉर, बिकॉज दीज आर स्मॉलर कंट्रीज, दे हैव टू गो अगेंस्ट बिगर मोनार्किकल पावर्स, बट दे विल बी सपोर्टेड बाय दीज बिगर कंट्रीज। और बदले में क्या होगा, जैसे ही वो आजाद होंगी ये बड़े देश उन पे कैप्चर कर लेंगे। तो मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये पूरी कंडीशन बड़ी डायनामिक, डायबॉलिक हो जाएगी, ठीक है। तो मेजर यूरोपियन पावर्स अपने तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि सेंटिमेंट्स को वो इस तरीके से मोल्ड कर सके कि वो अपनी इंपीरियलिज्म को इन द लॉन्गर रन एस्टैब्लिश कर पाए। तो ऐसा इमेजिन कर लो, ऐसा होता है, हमने देखा ना, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट छोटे लोगों को उनकी जमीन पे कब्जा पाना चाहते हैं तो उनको किसी तरीके से मोल्ड कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये छोटे जमीन वाले लोग किसी और को सैक्रिफाइस करने को रेडी हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली जीतना तो वो कैपिटलिस्ट को होता है। ये एग्जैक्टली ये बड़े देश ना यही कर रहे थे इन छोटे छोटे देशों के साथ, ठीक है। ओके, नाउ इसी वजह से हम देखते हैं कि पीपल वर ऑलवेज रेडी टू गो टू वॉर। मेजर यूरोपियन पावर्स उसमें मतलब आग में घी का काम करेंगे, और बाकी लोग जो है सब्जेक्ट बने बेचारे बैठे रह जाएंगे, उनके पास कुछ रहेगा नहीं ऑप्शन, और ऐसी तबाही फैल जाएगी। और इसमें बाल्कन रीजन, ये देखो ये बाल्कन रीजन है, ये सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी यहाँ से लिखनी जो है शुरू हो चुकी है। अब देखो क्या हो रहा है, बाल्कन रीजन बच्चे बहुत ही ज्यादा डायनेमिक और डाइवर्स और वर्सटाइल रीजन था, ठीक है। ये वो रीजन था जहां अलग अलग एथनिसिटी के लोग, जोग्राफिक डाइवर्सिटी के लोग, ग्रीस भी यही ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। तो बाल्कन रीजन इज वन ऑफ द पोर्शन वेयर ऑटोमन एम्पायर वाज कंट्रोलिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अलग अलग प्लेसेस हैं। तो प्रेजेंट डे का रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ये सारी कंट्रीज जो आज इतने सारे अलग अलग है। तो क्यों अलग है? क्योंकि भैया ऑफ कोर्स लैंग्वेज अलग है, डाइवर्सिटी है, कल्चर अलग है, बहुत सारी चीजें अलग अलग है, इसलिए तो देश भी अलग अलग है। ये सारे अलग अलग देश जो है ये इकट्ठा यहाँ एक एम्पायर पे पड़े हुए थे। तो इनके बीच में आजादी, नेशन स्टेट और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही होगी आप समझ सकते हो। इन सबको स्लाव्स के नाम से जाना जाता था, इनहेबिटेंट्स को ब्रॉडली स्लैब्स की तरह रेफर किया जाता था। सो द डैश वाज अ रीजन ऑफ एथनिक एंड जोग्राफिक डाइवर्सिटी। बताओ कौन से रीजन की हम बात कर रहे हैं जो एथनिक और जोग्राफिक डाइवर्सिटी से भरा हुआ था? फ्रांस, बाल्कन, इंग्लैंड या फिर ग्रीस? The dash was the region of ethnic and geographic diversity. तो अभी अभी हमने पढ़ लिया है बाल्कन्स इज द करेक्ट आंसर, राइट? बाल्कन्स वाज द रीजन ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, मूविंग ऑन। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में ये बहुत पहले से थे। यहाँ स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म हो जाता है, ठीक है। नेशनलिज्म का स्प्रेड वैसे ही बहुत डायनेमिक बना रहा था इस जगह को। यहाँ पे रोमांटिसिज्म भी फैल जाती है। ग्रीस के केस में हमने देखा है कि कैसे रोमांटिसिज्म का इस्तेमाल किया था लोगों ने।
है ना। अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इस एरिया में रोमांटिक नेशनलिज्म फैल रही है और ये एरिया डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, ये एरिया ब्रेक करता जाएगा, लोगों को अपनी आजादी चाहिए होगी और इस कदर चाहिए होगी कि बगल वाले देश के साथ क्या हो रहा है, बगल वाले रीजन के साथ क्या हो रहा है, क्रोएशिया ग्रीस से अलग होना चाह रहा है, ग्रीस अलग हो गया, क्रोएशिया का क्या हुआ, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक तरीके से लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे और ये पूरा एरिया टूटने लग जाएगा और उसमें बड़े बड़ी कंट्रीज अपना फायदा उठाने के लिए आग में घी भी डालेंगे, तो ये पूरी जगह एक्सप्लोसिव बन जाएगी। और पूरे 19th सेंचुरी में आप यही देखोगे कि ऑटोमन एम्पायर अपने आप को जो है वो कोशिश कर रहा है इस जगह को संभालने की। ऑटोमन एम्पायर को ऐसा लगता था कि वो मॉडर्नाइजर है, इंटरनल रिफॉर्म्स लेकर के आएगा, बेटर करेगा, लेकिन नहीं सक्सेसफुल हो पाते वो लोग। ठीक है, एक एक करके हर एक जो आपका यहाँ पे नेशन था वो धीरे धीरे अपने आइडेंटिटी के हिसाब से ब्रेक करने लग जाता है अपनी कंट्रोल को लेने के लिए, अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे ग्रीस का हमने 1832 में देखा। अब यहाँ के लोग जो हैं वो अपने इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स के लिए कुछ भी कर सकते हो, रोमांटिसिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि हमेशा से जो है बाहर का पावर अंदर आ रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर उनका अपना नहीं है, दे ट्राइंग देयर बेस्ट टू विन व्हाटएवर दे वांट टू। ठीक है, मतलब जो भी पॉइंट वो प्रूव करना चाहते हैं। सो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर विल डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंस, बाल्कन पीपल विल बेस देयर क्लेम ऑन नेशनैलिटी एंड हिस्ट्री, अपने कल्चर को, हिस्ट्री को, कि भैया देखो हम ये हमारी आइडेंटिटी है, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, हम अलग हो रहे हैं, हम ऐसे अपने आप को मेंटेन करेंगे और अपनी इस तरीके से लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस को वो रिबेलियन से रीगेन करने की कोशिश करेंगे। So let's on that note quickly answer this question. A large part of Balkan was under the control of which empire? Ottoman, Muslim or Greek? So it was the Ottoman Empire, right? Okay. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको आजादी चाहिए, अपनी हिस्ट्री से प्रूफ तो कर दे रहे हैं, अपने आप को अलग भी कर ले रहे हैं, रिबेलियस बने हुए बिल्कुल सारे बाल्कन रीजन के, सबको चाहिए कि अपनी लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस वापस ले आए। एट डिफरेंट मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी, अपने इंडिपेंडेंस को डिफाइन करने के लिए उन, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्फ्लिक्ट बहुत क्रिएट हो जाएगा, कोई अपनी बना रहा है, कोई किसी और की बना रहा है, मतलब एक ग्रुप में सब जब अपना अपना मतलब निकालने लग जाते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट ये क्रिएट हो जाता है। और ऑटोमन एम्पायर इतनी आसानी से जाने भी तो नहीं देगा, वो कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ऐसा कहते हैं ना कि मुझे जाने दो, इसको रख लो, वो वाला हिसाब कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रहा है। एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, फियर्स जेलसी देखने को मिलती है, सबको ये लग रहा है कि मुझे ज्यादा टेरिटरी मिल जाए, मुझे ज्यादा पावर मिल जाए, दूसरे के एक्सपेंस पे हो जाए मेरा काम, लेकिन मेरी मतलब की बात जो है वो निकल जाए। अब यहाँ पे एक बड़े पावर की राइवलरी आ जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक आर्च ड्यूक होते हैं, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनका असैसिनेशन हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है, बट ये राइवलरी में ही क्या होगा, एक आर्च ड्यूक होंगे, उनकी असैसिनेशन हो जाएगी और इस वजह से एक मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी की जो है ऑटोमन एम्पायर के साथ जो है लड़ाई पहले शुरू होगी और इस असैसिनेशन की वजह से, और वो बाल्कन रीजन में आएंगे और वहां असैसिनेशन हो जाएगा, तो यहां से लड़ाई शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करते करते ये इतनी स्प्रेड होगी कि सारे बड़े देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विल ब्रेक आउट। ठीक है, इसमें मैं अलग से एक सेशन, एक वीडियो बना दूंगी कि व्हाई डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट, एग्जैक्टली व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज, बट दिस वाज द इमीडिएट कॉज, हाउएवर इट वाज लॉन्ग ड्यू। ये जो लड़ाई या बाल्कन रीजन में चल रही है वो बाकी इंपीरियल कंट्रीज में भी हायर लेवल पे कहीं ना कहीं चल रही थी, अलग अलग इश्यूज थे, सो इट वाज लॉन्ग ड्यू, दिस वाज जस्ट समथिंग दैट इमीडिएटली स्पार्क्ड इट। तो इस पीरियड में इंटेंस राइवलरी होगा यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, कॉलोनीज के ऊपर, आप देख रहे हो वो भी आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है,
मिलिट्री माइट किसकी होगी, और राइवलरीज जो है वो एकदम साफ दिखेंगे आपको। बाल्कन प्रॉब्लम उसे और बढ़ा देगी। हर एक को चाहिए होगा कि उन्हें अपनी पावर मिल जाए, वो अपना बाल्कन रीजन पे कंट्रोल बना ले। बाल्कन रीजन जो है बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया बनेगी विच विल लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो विच रीजन वॉज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871? वेस्टर्न यूरोप, बाल्कन, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप? ओके, सो इट वॉज द बाल्कन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत सिंपल सी कहानी है बच्चे। ऑस्ट्रिया हंगरी के एक आर्च ड्यूक होते हैं, फ्रांस फर्डिनेंड। तो रशिया जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर ही रही थी। एक सर्बियन टेररिस्ट ग्रुप होता है ब्लैक हैंड करके, वो यहाँ जाकर के ऑस्ट्रिया हंगरी में असैसिनेट कर देता है आर्च ड्यूक को। इस वजह से पहली फाइट शुरू होगी। धीरे धीरे टीम अप होने लग जाएंगे लोग। ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ ऑटोमन एम्पायर आएगा, फिर जर्मनी आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका उधर पे क्या हो जाएगा विद द अदर नेशन, रशिया है तो फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब इकट्ठे होकर के अपने अपना ग्रुप बनाएंगे, अलाइज बनाएंगे, और ऐसे करके जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हो ही जाएगा। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। So European alignment of nationalism with imperialism definitely leads to a disaster in 1914. Anti-imperial movements जो हैं develop करते हैं पूरे worldwide, which struggle to form independent nation states. ये movements inspired थे by a sense of collective national unity, which forged a confrontation with imperialism. So this is what basically happens. हालांकि हमने देखा है नेशनलिज्म डेवलप करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। इनफैक्ट कई ऐसी जगह पे भी जहाँ पे कोलोनाइजेशन हुई हुई थी, इंपीरियलिज्म बहुत ज्यादा पीक पे था। द आइडिया वाज वेरी क्लियर दैट सोसाइटी शुड बिकम नेशन स्टेट्स एंड दैट शुड बी एक्सेप्टेड एज नेशनल एंड यूनिवर्सल। सो हियर इज वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, वी हैव टू मैच द कॉलम, तो साथ में कर लेते हैं। ज़ोल्वरीन क्या था बच्चे? इट वॉज कस्टम यूनियन। तो 1 का डी होगा, 1 का डी, वी हैव जस्ट वन ऑप्शन, बट लेट्स सी। जर्मेनिया वॉज एन एलिगरी, सो 2 इज सी। कार्बोनारी वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी, 3 का बी, एंड बर्बन वॉज द डायनेस्टी, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. So keep on doing such questions. You'll find plenty of it on Imbibe's platform, and plus our flagship product, which is your virtual lab being on your phone, जहाँ से आप अपने practicals की तैयारी कर सकते हो. There could be nothing better than this. So just make sure that you have it. So let's quickly summarize. Nationalism और imperialism की करते बात, तो modern Balkan included Bulgaria, Croatia, Greece, Romania, Bosnia, Albania, ये सारी जगह थी। ये एरिया बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग बना रहा था बिकॉज नेशनलिज्म जो है अब वो लिबर्टी डेमोक्रेटिक वैसी नहीं रह गई थी। इट हैड चेंज्ड द मीनिंग एंड हेंस इट बिकेम वेरी एक्सप्लोसिव बाय रोमांटिक नेशनलिज्म. Major European wanted control over this area, creating it into a huge place of great conflicts, which ultimately led to the First World War. So with this, we have finished this chapter. In fact, do not forget to check out your Imbibe Simple subscription. 7 days का free trial तो ले ही लो. आपको और डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना है तो I'm doing it right now on our batch application classes where you get VLE app, lens, everything. Guys, do not forget to get your doubts resolved from here. ऐप पे यहाँ पे आपको redirect करके मिल जाता है doubt solving का resolution. And this is the Telegram channel that we have. Please make sure to be a part of this Telegram channel. This is the link and this is the QR code.
So with this, we have come to the end of the session. Thank you so much everyone for being here. I hope you have understood the chapter. If you have any doubts, any queries, feel free to ask me in the comments section. And do share the video with your friends. Do not forget to hit the like button and stay subscribed. Thank you so much for being here. Have a great time. Hasta la vista, bye-bye, ciao. Take good care of yourself. See you soon with the next chapter. And if you have any other requests or demands of what should be done next, please feel free to put it in the comment section. I will do check it out later. Until the next time we meet, stay tuned and keep imbibing.